talking about the situation when you would be taking the exam on the next day, which means if you are going to appear for your IELTS exam tomorrow, this situation or this video is going to be very much relevant to you. अगर आपने एग्ज़ाम सैटरडे को देना है, in case you going for the exam on Saturday, you might be watching this video on Friday. In case you are appearing for the exam on Thursday, you should be watching this video on Wednesday. In case you're going for the computer-based exam, in all different situations, you should be watching this video one day before. Now I'll just give a brief introduction about myself so that you could understand whatever I'm going to tell you is going to be related to the experience I've got as a student and also as a teacher. I completed my education from International School of Shoaib Art. I did my higher education from Canada. I'm a graduate member of Canadian Institute of Marketing. For the last 10 years I've been teaching IELTS. I've taken the exam 3 times and I've taught more than 25,000 students. यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताना चाहूँगा कि एकेडमी ज़्यादातर ये बताती हैं कि हमारे पास जो आया था वो पास हो गया था. ऐसा नहीं होता. When people come to me, sometimes people get a lot of improvement, sometimes people stay on the same place where they were, sometimes people also do not get their desired score. So all different kind of situations occur. But today's video is very important for the reason that whenever I'm teaching a batch, I'm not very much sure when people would be appearing for the exam. मुझे पता होता है जैसे 25-30 students के हैं, 25 to 30 students हैं, उनमें से 6-7 जो हैं वो जैसे ही कोर्स ख़त्म होना होता है वो अपने एग्ज़ाम दे देते हैं. बहुत से लोग बाद में देते हैं, कोई 8 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई 2-3 महीने के बाद. So you should be watching this video in case you're preparing for the exam on the next day, because you might not be able to hear it from me in the class, or you might not be able to hear it in case you're preparing for the exam afterwards. ये मैं क्लास में भी बताता हूँ ये चीज़, but I'm just making it for all those people who might not be my students or who might be taking the exam afterwards, so that they could actually listen to this advice again. Now let's start with the very first thing. On one day before the exam, what are you supposed to do? The first thing is you have done everything, you have prepared for it, you have worked on every single thing. Now the most stressful day is there. ये आपकी पूरी प्रिपरेशन, आपके पूरे आइल्स की जो जितनी भी आपकी जो जर्नी है उसका सबसे स्ट्रेसफुल डे होता है एक दिन एग्ज़ाम से पहले. Now the first advice I would be giving you is that do only one mock exam. Do only one mock exam. Do not do 2-3 mock exams and stress yourself out and get yourself exhausted. एक मॉक एग्ज़ाम करें. जैसे आपका एक लिसनिंग का एग्ज़ाम है, रीडिंग का टाइम मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए आप जहाँ 60 मिनट्स लगा रहे हैं वहाँ पे 50 मिनट्स कर दें रीडिंग को. एंड दैट इज़ समथिंग आई डू इन द लास्ट वीक ऑल्सो. बट 50 मिनट्स, 10 मिनट्स कट कर दें रीडिंग में से. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ट्रांसफर ऑल योर आंसर्स टू द आंसर शीट. 10 मिनट्स कट कर दें राइटिंग के, कि वो टाइम जो है आप अपनी प्रूफ रीडिंग को दे सकें और आप अपनी पंक्चुएशन के रूल्स और उन सब चीज़ों को दे सकें. The second thing I want you to do is to talk to positive people. Now, who are the positive people? Positive people वो हैं जो आपको मज़ीद स्ट्रेस आउट नहीं करेंगे, और ये ज़्यादातर आपके कोई दोस्त ही होंगे जो आपको कहेंगे कुछ नहीं होता कर लो. मेजॉरिटी फैमिली मेम्बर्स इतना स्ट्रेस दे देते हैं एग्ज़ाम से पहले. फॉर इंस्टेंस किसी कोई लेडी हैं, उनके हस्बैंड देखो मैंने कितने पैसे लगाए हैं आप पे. माँ पेरेंट्स भी कहते हैं आप नंबर अच्छे आने हैं. आप कभी भी उन लोगों से बात ना करें जो आपको और स्ट्रेस में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हो जाएगी. आप उन लोगों से बात करें, और अपने क्लास फेलो से, क्लासमेट से भी ना करें, वो मज़ीद आपको स्ट्रेस में ले जाएंगे. दे वुड एग्जैस्परेट द सिचुएशन. टॉक टू अ पर्सन हु इज़ न्यूट्रल, हु वुड ऑलवेज से येस टू एवरीथिंग यू आर डूइंग. आप किसी को बताएंगे मैंने ये किया था, वो किया था. आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, कोई आपके रिश्तेदार हैं जो आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो पूछ रहे होंगे कैसी है, सब कुछ कर लिया है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा, तुम ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, रुक जाएगी. यकीन माने जो लोग ये आपको कह रहे हैं वो ख़ुद भी ज़िंदगी में 10-10 बार फेल हो चुके होते हैं. फेल का मतलब ये नहीं है कि आइल्स में फेल हुए होते हैं. हर बंदा ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे आके हारता है, पूरी तरीके से हार जाता है. एंड देन देयर इज़ अनदर वे. I just want you to realize that this is not the first time you're trying something, and this is not going to be the last time you're trying something.
if you are going to think about that, okay, if I am going to waste that money of like 38,000 rupees, or I'm going to waste that preparation and I'm not going to go over there, ये सब चीज़ें आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस को नीचे ले जाती हैं, ये आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस को कोई ऊपर नहीं लेके जाएंगी. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. लोग जब पूछ रहे होते हैं ना कि शुड बी गो फॉर AEO और ब्रिटिश काउंसिल, तो ज़्यादातर वो अगर उनको लग रहा होता है ना AEO से हमें ज़्यादा स्कोर मिलेगा, तो अगर वो AEO से देते हैं एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम में कम स्ट्रेसफुल होते हैं. दे आर हैविंग लेस स्ट्रेस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डोंट टॉक टू पीपल हु आर गोइंग टू जज यू, जो आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, हाँ भी कैसी तैयारी जा रही है. ऐसे लोगों से ना बात करें. ऐसे लोगों से बात करें जो आपको कहें हाँ आपने जितना करना था, अब आखिरी दिन पे तो कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, जितना करना था आपने कर लिया है, नाउ यू हैव टू रिलैक्स. द थर्ड थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टू प्रे. इन केस यू आर समवन हु इज़ अ स्टॉन्च बिलीवर, आप अगर प्रे करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, या आपका जो भी रिलीजन है, आप कुछ थोड़ा सा भी प्रे करेंगे, तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कंटेंटमेंट. आपको ऐसे फील होगा कि हाँ आपका स्ट्रेस 10 से 15 मिनट में नीचे जाना शुरू हो जाएगा. सो ट्राई टू डू दैट एंड इट विल वर्क अ लॉट. द फोर्थ थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज दैट आई वॉन्ट यू टू लुक एट द मिस्टेक्स विच यू हैव कमिटेड इन द राइटिंग पार्ट. राइटिंग इज द पार्ट वेयर नॉर्मली पीपल वुड नॉट बी able to get their scores. So just look at the mistakes so that you don't repeat those mistakes on the exam day. And the last thing is that have some kind of entertainment. Have some kind of entertainment. It's easier said than done. मेरे लिए बहुत आसान है कहना कि आप कोई एंटरटेनमेंट करें, कोई क्रिकेट मैच खेल लें, देख लें, कोई मूवी देख लें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दैट थिंग. अगर आपको लग रहा है कि मूवी देख के तो आप अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं, उसमें लिसनिंग भी होगी, स्पीकिंग भी होगी, कुछ आप सब टाइटल्स लगा लें, रीडिंग भी होगी, बट डू नॉट गिव योर सेल्फ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मच टायरिंग. ऐसा ना करें कि 3 मॉक एग्ज़ाम्स कर लें, ऐसा ना करें कि मैं 5 रीडिंग के एग्ज़ाम करने हैं. अगले दिन आपका जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से स्ट्रेस्ड आउट हो चुका होगा, आप थक चुके होंगे. सो डू नॉट गिव योर सेल्फ समथिंग विच इज़ वेरी मच बर्डनसम. ओके, थैंक यू.